देख रहा हूं, आप भी देख रहे हैं, तो नई बात क्या है, हो रहा है ये। Successive terms you have represented Hyderabad. Now the BJP has brought in a political debutant who is accusing that you did not allow the jobs to come to the youth of Hyderabad. You did not allow the development of Hyderabad. I would like you to react to that. Well, every party has to contest the election, and there is nothing surprising in what BJP is saying. The only shocking part is that Mr. Narendra Modi had promised that he will give 2 crore jobs a year. Has that been fulfilled? Mr. Narendra Modi talks about making India the 3rd largest economy, but can Mr. Modi say what is the per capita income? Where are we at per capita income? At 150 number. So this is the important point. These are very important points. And thirdly, Mr. Narendra Modi's government has not been able to stop the PLA from occupying 2,000 square kilometers of our land. Out of 55 patrolling points, we have lost round about 15. This was said by the present SP of that area. So, and these are the inflation is an issue. Why is it that before elections petrol and diesel prices kind of decrease? Why didn't you decrease it, let us say, 3 months before, 4 months before? And it proves my point that this nation requires elections every 6 months. This nation does not require one nation, one election. This will make any government dictatorial, which they are, and it will violate federalism, which is part of the basic structure of our constitution. There is a political novice who's been now fielded by the BJP against you. How can I control it? You know, how can I pick and choose? No one can pick and choose their opponents. Whoever is a candidate, we have to contest against them. That's it. It's going to be the same for everyone. Sir, you have extended a hand of friendship to the Congress government here, to the Chief Minister here as well. Are you hoping that their help will also be required for you to fight this election in Hyderabad in terms of the kind of candidate that they put up here? As a candidate, I require help from everyone, including from you. You know, from people, every voter, I require help. Then only, any party or a candidate can win. How can I say that I will not take help from him or not take help from him? And why would I not welcome help from anyone? And that means that the voters which are there, my primary importance is the Hyderabad voters, which hopefully I'll be contesting. So one cannot say, oh, I will not take that help, and everything has to be taken. सर, कल आपने बयान दिया कि डिविजिव फोर्सेस के खिलाफ हमको काम करना पड़ेगा, मुख्यमंत्री के साथ आपने गले मिले कल, और इस पर क्या कहेंगे सर? क्या नहीं, गले मिलना गुनाह है क्या? हरे रंग में सफेद भी जोड़ना है। हाँ? हरे रंग के ऊपर सफेद। अरे भाई, तिरंगे में हरा भी है, सफेद भी है, सफेद भी है। अरे नहीं, नेशनल फ्लैग में सब रंग है। आप लोग देख ही नहीं रहे नेशनल फ्लैग को। अच्छा, मेरे को हरे से क्यों जोड़ रहे आप? ये बोलिए आप। मैं तो सफेद शेरवानी पहना हुआ हूं। हरे से जोड़ना क्या मतलब है? मुसलमान है तो हरा, अरे भाई, अब ऐसा होगा तो क्या तरबूजा मेरा है, खरबूजा आपका है क्या? संतरा आपका नहीं? सर, कांग्रेस के साथ आप जो है अभी कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर और कांग्रेस के रेवंत रेड्डी के साथ काफी देखिए, दोनों एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि पहले आपकी दोस्ती बीआरएस के साथ थी, अब कांग्रेस के साथ आपकी दोस्ती। देखिए, एक बात सुनिए, तेलंगाना को मजबूत करने के लिए, तेलंगाना में अमन को बरकरार रखने के लिए, तेलंगाना में फाशिस्ट और कम्युनल फोर्सेस को रोकने के लिए, ये हमारी एक अखलाकी जिम्मेदारी है, नंबर 1। और हम पिछले 10 साल से भी करते आए, अभी भी हमको करना है। इसलिए हैदराबाद हो या तेलंगाना, वहां पर कम्युनल राइट्स ये सब चीजें नहीं हुई। दूसरी बात यह है कि मैं उनका शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने आकर मेट्रो के जो एक लाइन बची हुई थी हैदराबाद पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में, काम हो गया हैदराबाद पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी मेट्रो का, मगर एक लाइन जो बची हुई थी जुबली बस स्टैंड से फलकनुमा का, उन्होंने फाउंडेशन स्टोन डाला। और दूसरा, उन्होंने मिरालम के पास एक ब्रिज का भी उन्होंने मंजूरी दी। तीसरा, मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में रोड वाइडनिंग के लिए उन्होंने 200 करोड़ रुपए दिए।
मैं उनका शुक्रिया अदा किया। तो इसमें बुरी बात क्या है? डेवलपमेंट होना चाहिए ना तेलंगाना में, हैदराबाद में, तो इसमें बुरा क्या है? देखिए, हाँ, हाथ के हाथ के साथ आपका हाथ है। पहले आरोप लगता था कार के स्टीयरिंग आपके हाथ में। वो आप लोग बोलते थे अब आप अमित शाह की जबान में बोल रहे हैं। मैंने आरोप प्रति आरोप तो चलते रहता है ना। इलेक्शन है, तेलंगाना की अवाम ने उनको सत्ता दी है तो हमको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, और हमको हैदराबाद को आगे लेके जाना है। तो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं। सर आप कह रहे हैं आप क्या कांग्रेस के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, कैसे समझे? पहले आप बीआरएस के साथ आपकी दोस्ती का हाथ था। देखिए, Or is it about the bigger danger of BJP that you want to keep out so you can join hands? देखिए, आगे तो बढ़ना है, पीछे तो हटना नहीं। आगे तो बढ़ना है, पीछे कहाँ हटेंगे? पीछे हटने का नाम असदुद्दीन ओवैसी है ही नहीं। आगे किसके साथ अरे आगे बढ़ना है, ना। आगे बढ़ेंगे ही तो हर पॉलिटिकल पार्टी आगे बढ़ती है ना। किसके साथ? अरे आगे बढ़ेंगे भाई, किसके साथ बोलते? हम में काबिलियत है, हम खुद आगे बढ़ रहे हैं। यहां तक हमारा जो सियासी सफर रहा है और आगे भी रहेगा, तो उसमें हमारी कोशिशें रही, मेहनत रही, लोगों का साथ रहा, और रहेंगे, आगे बढ़ेंगे। कितने सीट आप क्योंकि अभी चुनाव के डेट डिक्लेयर हो रहे हैं, तो आपने भी सोचा होगा कि देखिए, स्टेट में देखिए, औरंगाबाद से इंशाल्लाह इम्तियाज जलील साहब लड़ेंगे, किशनगंज से अख्तरुल ईमान साहब जो हमारे बिहार के अध्यक्ष लड़ेंगे, हैदराबाद से इंशाल्लाह पार्टी असदुद्दीन ओवैसी को टिकट देगी। इससे हटकर भी बिहार, यूपी, महाराष्ट्र में हमारे वहां के पार्टी प्रेसिडेंट्स डिसाइड कर रहे हैं। वही बताएंगे आपको, देखेंगे। अच्छा सर, आपकी अपोनेंट हैं, आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में काफी घूम रही हैं, बीजेपी से उनको टिकट मिला है। उनका सीधे सीधे आप पे आरोप है कि आपने ओल्ड सिटी को जानबूझ के पिछड़ा रखा, डेवलपमेंट नहीं किया, यूथ बेरोजगार हैं। ये सारे आरोप वो लगाते चल रही हैं, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में घूम रही हैं। नहीं, देखिए, पॉलिटिकल हम पार्टी के अपोनेंट है। अब जाहिर है, अचानक इलेक्शन से पहले आ गए तो कुछ बोलना पड़ता है, तो बोलिए, कोई बात नहीं। आरटीआई डालिए, आरटीआई से मालूम हो जाएगा आपको कितने डेवलपमेंट के काम हुए, नहीं हुए। बुनियादी सवाल ये मुल्क जानना चाहता है कि 10 साल में नरेंद्र मोदी की सरकार ने भारत के जो युवाओं का जो डेमोग्राफी डिविडेंड पूरे विश्व में हमारे पास है, उनका मुकद्दर बेरोजगारी क्यों बना दिया? देश ये जानना चाहता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड में 6,000 करोड़ रुपए कैसे बीजेपी को मिले और इसका इस्तेमाल कैसे हुआ। देश ये जानना चाहता है कि जिन्होंने आपको दिया है, आपने उनको क्या क्या नहीं दे दिया है। हाँ, आपने एक बॉन्ड उनको दिया तो आपने उन पर एक बार नहीं, कई चीजें उन पर वार दी आपने। तो ये देश जानना चाहता है कि 2000 स्क्वायर किलोमीटर 56 इंच का सीना रखने वाले प्रधानमंत्री चीन को क्यों छोड़ दिए जमीन? वो या बताना पड़ेगा उनको। भाई, बीजेपी के पास जो 6,000 करोड़ रुपए आए हैं, वो तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस का पूरा बजट है, मालूम आपको? 6,000 करोड़ बीजेपी के पास है और देश के नौजवान की जेब फटी हुई है। 6,000 करोड़ बीजेपी के पास है, 1,500 करोड़ ममता के पास है, 1,100 करोड़ कांग्रेस के पास है, 1,000 करोड़ टीआरएस के पास है, डीएमके के पास है। देश के युवाओं के पास क्या है भाई? ये सवाल है। सर, पश्चिम बंगाल लड़ेंगे सर? हाँ, पश्चिम बंगाल लड़ेंगे सर? अरे आप सभी अभी दो कैसा होगा? ममता दीदी को चोट लगी है, उनको मैं अरे भाई, क्यों नहीं यार, किसी से पर्सनली हेट्रेड क्यों होगी? हम हमको हमारे बेस्ट विशेस उनको देते हैं और अल्लाह करे जल्द से जल्द सेहतमंद हो जाए। Sir, do you think the India alliance stands a strong chance against Narendra Modi? Locally, you are the strongest. I have said very clearly that Hyderabad, people of Hyderabad Parliament constituency and Telangana and people of Seemanchal will vote against this unconstitutional religion-based law, discriminatory law, that is CAA. That is what I have stated.
The rest, I am not part of that alliance, so I cannot speak on their behalf. Sir, but as somebody with national ambition, you are Are you contesting in other towards states as well. As somebody with national ambition who's contesting in other states, what is your view? What do you think about the India alliance? You don't have to. No, I see. Don't reduce me to the level of some political analyst who has no work to do, who sits every day at the TV channels and gets something in return. I cannot stoop down to that level. I can only speak on behalf of my political party, which I have told you just now. As far as other alliances are concerned, they have more qualified people than me, and they can answer your question in a very good way. Is your party open to India alliance if they approach you? अरे भाई, आप मेरे दरवाजे में दारुसलाम में आ गए। दारुसलाम में दरवाजे है ही नहीं। ओपन ग्राउंड में मेरा दफ्तर है। स्वागत करते हैं सर। अरे इम्तियाज जलील ने तो एक नहीं 2 मरतबा बोला महाराष्ट्र में। अख्तरुल ईमान बोले किशनगंज में, वो आप और क्या बोलेंगे? सर, अब सीए को एनआरसी और एनपीआर के थ्रू जोड़ने की बात कर रहे जी। हैं, लेकिन अभी हाल ही में अमित शाह ने जो इंटरव्यू दिया था, वहां पे उन्होंने कहा था कि देयर इज नो प्रोविजन फॉर एनआरसी इन दिस लॉ एंड दिस लॉ विल नॉट टेक अवे एनीवन्स सिटीजनशिप। देखिए कितना झूठ बोलते हैं। अरे झूठ की भी तो कोई हद होनी चाहिए मेरे भाई। ये सिटीजनशिप एक्ट में बन रहा है ना। एनपीआर एनआरसी भी सिटीजनशिप एक्ट का है। आप रिलीजन के ऊपर सिटीजनशिप दे रहे तो रिलीजन के ऊपर छीन नहीं सकते क्या आप? क्या अमित शाह ने लोकसभा में मेरा नाम लेकर नहीं कहा था कि ओवैसी जी एनपीआर होगा, एनआरसी होगा? नंबर 1। हाँ, वो बोलते हैं कि इसका हिस्सा नहीं है। पार्लियामेंट में बोला गया, आपके टीवी चैनलों पर आकर वो बोले। आसाम में 19 लाख लोगों के नाम नहीं आए जो सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड। एनआरसी हुआ, 1600 करोड़ रुपए खर्चा किए गए, 50 लोगों ने सुसाइड किया। उसके बाद जब 19 लाख लोगों के नाम नहीं आए, जिसमें से करीब 17 लाख नॉन मुस्लिम लोगों के नाम है, उसको आसाम के मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम उनको CAA के तहत सिटीजनशिप दे देंगे। उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा इस बात को। वो जो 1 लाख 1.25 लाख मुसलमान है, वो क्या करेंगे? सर, 7 चरणों में चुनाव की बात हो रही है। अभी नहीं मालूम आशिफ को, अभी नहीं, मैं अभी नहीं मालूम। मेरे को देखने दो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में इंटरव्यू में अच्छा सर, हाँ? आपका सीधा सवाल क्या रहेगा सर? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंटरव्यू को फेस करने वाले हैं इंडिया को? किससे फेस करने वाले? अरे आपके चैनल पे जा रहे, मेरे चैनल पे आ रहे। क्या आप? मैं एंकर हूँ। अरे मैं एंकर हूँ। अरे क्या छोड़ो यार, मैं एंकर हूँ क्या थोड़ी? एमआईएम 3 सीटों से आगे बढ़ के अरे मैं आपको बोल दिया हूँ, आप ही बोला हूँ फिर। नहीं, अभी मैं तो कहा हूँ ना कि बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र के हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट इस पर फैसला लेंगे और आपको बताएंगे। सर, नोटिफिकेशन घोषणा हो चुकी है, आपकी पार्टी कितनी प्रिपेयर? आप वो प्रिपेयर, देखिए हम लोग चुनाव के लिए प्रिपेयर नहीं होते। हम लोग साल के 12 महीने, हफ्ते में 6 दिन हम बराबर जनता के दरमियान में रहते हैं, और यही हमारी तैयारी है। और इंशाल्लाह हमको उम्मीद है कि इंशाल्लाह अच्छा हम लोग जहां से सीट पे हमारे उम्मीदवार लड़ेंगे, हमको कामयाबी मिलेगी। ओके।